کہ وزیراعظم کی چین کے قومی ترقی اور اصلاحاتی کمیشن کے چیئرمین سے ملاقات۔ چیئرمین کے سیاسی مشاورتی کونسل کے وائس چیئرمین کی ملاقات ہوئی ہے۔ سی پیک کے جاری منصوبوں اور مستقبل کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ چین اور پاکستان آزمودہ دوست ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان چین تصویراتی شرکت داری ہر آزمائش پر پورا اتری ہے۔ کووڈ کے باوجود سی پیک منصوبوں پر کام جاری رہا۔ چین کے قومی ترقی اور اصلاحاتی کمیشن کا تعاون قابل تحسین ہے۔ سی پیک BRI منصوبے کا اہم جزو ہے۔ سی پیک کے دونوں ممالک کے عوام مستفید ہو رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے مزید کہا کہ سی پیک منصوبوں سے پاکستانی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سی پیک منصوبوں نے ملک میں پائیدار معاشی ترقی کی بنیاد رکھ دی۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ وزیراعظم کی چین کے قومی ترقی اور اصلاحاتی کمیشن کے چیئرمین سے ملاقات۔ چین کے سیاسی مشاورتی کونسل کے وائس چیئرمین بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ سی پیک کے جاری منصوبوں اور مستقبل کے اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ چین اور پاکستان آزمودہ دوست ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاک چین تصویراتی شرکت داری ہر آزمائش پر پورا اتری ہے۔ کووڈ کے باوجود سی پیک منصوبوں پر کام جاری ہے۔ چین کے قومی ترقی اور اصلاحاتی کمیشن کا تعاون قابل تحسین ہے۔ سی پیک BRI منصوبے کا اہم جزو ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے مزید کہا کہ سی پیک سے دونوں ممالک کے عوام مستفید ہو رہے ہیں۔ سی پیک منصوبوں سے پاکستانی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ سی پیک منصوبوں نے ملک میں پائیدار معاشی ترقی کی بنیاد رکھ دی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ وزیراعظم کی چین کے قومی ترقی اور اصلاحاتی کمیشن کے چیئرمین سے ملاقات ہوئی۔ چین کے سیاسی مشاورتی کونسل کے وائس چیئرمین بھی ملاقات میں شریک ہوئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاکر عباسی سے۔ جی شاکر عباسی بتائیے گا۔ دیکھیں جی، وزیراعظم عمران خان کی چین کے نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن کے چیئرمین اور وائس چیئرمین سے ورچوئل ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں سی پیک پر پیش رفت اور مستقبل کے اقدامات کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ سی پیک دونوں ممالک کے عوام کو ٹھوس فوائد پہنچا رہا ہے۔ سی پیک کے ابتدائی فیز کے منصوبوں نے پاکستان کے معاشی منظرنامے کو تبدیل کر دیا ہے۔ سی پیک نے جو ہے وہ پائیدار اقتصادی ترقی کی مضبوط بنیاد رکھی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا سی پیک کی بروقت تکمیل اور اس کے اعلیٰ معیار کی ترقی کے عزم کا انہوں نے اعادہ بھی کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ دونوں فریق گوادر کو علاقائی تجارت اور صنعت کے مرکز بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ ML1 اور توانائی کے دیگر اہم منصوبوں کو بھی ترجیح دیں گے۔ چین سے سی پیک پر مستحکم پیش رفت اور ترقی کے لیے پرعزم ہیں، یہ کہنا تھا چیئرمین NRDC کا کہنا تھا کہ چین گزشتہ 7 برس میں پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ کار اور تجارتی شراکت دار بن چکا ہے۔ تمام متعلقہ چینی ادارے سی پیک منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے چینی سرکاری اور نجی اداروں کی حوصلہ افزائی جاری رکھیں گے۔ دونوں فریقین کا نئے گرین ڈیجیٹل سے تجارت اور صنعتی راہداریوں کے قیام کا فیصلہ انہوں نے کیا۔ اس کے علاوہ فریقین نے بورڈ آف انویسٹمنٹ اور NDRC کے درمیان صنعتی تعاون کے فریم ورک معاہدے پر دستخط کا خیر مقدم بھی کیا۔ جی شاکر عباسی، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کے دورہ چین کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ وزیراعظم نے 18 سیکٹرز کے حوالے سے ویڈیو کانفرنس میں شرکت بھی کی ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ وزیراعظم سرمایہ کاری اولمپکس کے افتتاحی تقریب میں شریک ہوں گے۔ عمران خان پاکستان کے پہلے وزیراعظم جنہیں اولمپکس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ تقریب میں 20 سے زائد ممالک کے سربراہان شریک ہوں گے۔ وزیراعظم چین کے بڑے ٹی وی چینلز کو انٹرویو بھی دیں گے۔ فواد چودھری نے کی وزیراعظم کے دورہ چین کے حوالے سے اہم گفتگو ہوئی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ وزیراعظم کے دورہ چین کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ چین میں ویڈیو کانفرنسز کی ہیں اور اس وقت اس میں وقفہ ہے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر کا CGTN میں ایک انٹرویو ہوگا جو چائنا کا سب سے بڑا ٹیلی ویژن ہے۔ بزنس میٹنگ کے بعد وزیر اعظم اور جو وزراء ہیں وہ جائیں گے سرمائی اولمپکس کا جو گراؤنڈ ہے وہاں پہ، جہاں پہ افتتاحی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کے وہ پہلے حکمران ہیں، پہلے لیڈر ہیں جن کو اولمپکس میں شرکت کی اس طرح سے دعوت دی گئی ہے اور یہاں
वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन का बाकायदा आगाज हो चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने 18 सेक्टर्स के हवाले से वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। वज़ीर-ए-आज़म सरमाई ओलंपिक्स के इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्हें ओलंपिक्स में शिरकत की दावत दी गई है। तकरीब में 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीन के बड़े टीवी चैनल्स को इंटरव्यू भी देंगे। फवाद चौधरी की वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन के हवाले से अहम गुफ्तगू हुई है। चीन में आगाज हो चुका है जो दौरे का जो फॉर्मल पार्ट है उसका। सुबह वज़ीर-ए-आज़म ने 18 से ज़्यादा जो सेक्टर्स हैं उनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की हैं और इस वक्त उसमें वक्फा है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर का CGTN में एक इंटरव्यू होगा जो चाइना का सबसे बड़ा टेलीविजन है। बिजनेस मीटिंग्स के बाद वज़ीर-ए-आज़म और जो वुज़रा हैं वो जाएंगे सरमाई ओलंपिक्स का जो ग्राउंड है वहाँ पे, जहाँ पे इफ्तिताई तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के वो पहले हुक्मरान हैं, पहले लीडर हैं जिनको ओलंपिक्स में शिरकत की इस तरह से दावत दी गई है और यहाँ पर 20 से ज़्यादा सरबराहान ममलिकत आज इस तकरीब में शिरकत करेंगे। भारत का ताकत की बुनियाद पर सीज़फायर दावा बेबुनियाद है। DGISPR के मुताबिक किसी को ताकत के हवाले से इल्जाम नहीं किया जाना चाहिए। DGISPR के मुताबिक कोई भी फरीक अपनी ताकत और दूसरे की कमजोरी ना समझे। भारतीय आर्मी चीफ का बयान गुमराहकुन है। DGISPR का ट्वीट, पाकिस्तान दोनों जानिब कश्मीरी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर रजामंद था। आपको बताएं कि भारत का ताकत की बुनियाद पर सीज़ फायर का दावा बेबुनियाद है। DGISPR के मुताबिक किसी को ताकत के हवाले से इल्जाम नहीं रहना चाहिए। कोई भी फरीक अपनी ताकत और दूसरे की कमजोरी ना समझे। भारतीय आर्मी चीफ का बयान गुमराहकुन है। पाकिस्तान दोनों जानिब कश्मीरी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर रजामंद हुआ था। अब आपको बताएं कि वजारत दाखिला ने साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को फूल प्रूफ सिक्योरिटी की मंजूरी दे दी। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से सिक्योरिटी वापस नहीं ली जा रही। चीफ जस्टिस का ओहदा रखते वक्त जो सिक्योरिटी मिली थी वो बरकरार रहेगी। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको एक बार फिर बताएं कि वजारत दाखिला ने साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को फूल प्रूफ सिक्योरिटी की मंजूरी दे दी है। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से सिक्योरिटी वापस नहीं ली जा रही है। चीफ जस्टिस का ओहदा रखते वक्त जो सिक्योरिटी मिली थी वो बरकरार रहेगी। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि वजारत दाखिला ने साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को फूल प्रूफ सिक्योरिटी की मंजूरी दे दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी नासिर भट्ट से। जी नासिर भट्ट, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जी, इस हवाले से बाकायदा वज़ारत दाखिला ने साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की मंजूरी दे दी है। ख़त लिखा गया था रजिस्ट्रार की जानिब से और उसका जो जवाब है वो वज़ारत दाखिला की जानिब से दिया गया है और मंजूरी दे दी गई है साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने की। और इस हवाले से बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि साबिक चीफ जस्टिस जो हैं गुलजार अहमद, उनसे सिक्योरिटी वापस नहीं ली जा रही। वज़ारत दाखिला ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस का ओहदा रखते वक्त उनको जो सिक्योरिटी मिली थी वो बरकरार रहेगी। जी बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट तफसीलात से आगाह करने के लिए। एहतसाब अदालत कराची में आमदन से ज़ायद असासा जात केस की समाअत हुई है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी एहतसाब अदालत कराची में पेश हुए। अदालत ने रेफरेंस की समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन की तारीख दे दी। आगा सिराज दुरानी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हदबंदी करेगा तो इलेक्शन होंगे। अपोजिशन जमातों की डिमांड है मुल्क में सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन होने चाहिए। मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बेहतरी के लिए इलेक्शन ज़रूरी है। आगा सिराज दुरानी ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बल्दियाती बिल के हवाले से हुक्म आए हैं। 11 फरवरी को सिंध असम्बली का इजलास होगा। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की गैर रस्मी गुफ्तगू। आपको एक बार फिर बताएं कि एहतसाब अदालत कराची में आमदन से जायद असासा जात केस की समाअत हुई है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी अदालत कराची में पेश हुए। अदालत ने रेफरेंस की समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। डेट हुई है 19 फरवरी। इलेक्शन तो अनाउंस किया है ना, सिंध गवर्नमेंट ने भी इलेक्शन अनाउंस किया लोकल बॉडीज का।
क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन ने हद बंदी करनी है, तो जैसे ही वो हो जाएगा तो फिर कोई डेट अनाउंस करेंगे। वो तो देखें ना, सारे अपोजिशन की डिमांड है कि कौमी और सूबाई इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि इस वक्त हालात जो है मुल्क के बड़े ख़राब हैं, उसको बेहतरी के लिए नई इलेक्शन होने। तो हर पार्टी की अपनी पॉलिसी है, जो हमारी पॉलिसी है वो हमारी है, नवाज लीग की अपनी पॉलिसी है, दूसरी पार्टियों की अपनी पॉलिसीज़ हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म आया है, जो वहाँ से ऑर्डर्स हुए हैं, उसके हिसाब से आगे मूवमेंट होगी। सिंध असेंबली का इजलास भी बुलाया गया है 11 तारीख को। 11 तारीख को हम देखते हैं कि हमारी सिंध गवर्नमेंट की क्या। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन मुतहरिक हो गई। इलेक्शन कमीशन का फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान को नोटिस। ज़ियाउर रहमान को डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने 5 फरवरी को तलब कर लिया। ज़ियाउर रहमान को JUI उम्मीदवार की मुहिम चलाने पर नोटिस जारी हुआ है। ज़ियाउर रहमान को दावा देने वाले JUI उम्मीदवार को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। गुज़िश्ता समात पर अली अमीन नहीं थे, आज उमर अमीन नहीं आए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि उन्होंने कहा था कि अली अमीन को कोरोना हुआ है। वकील JUI कामरान मुर्तज़ा ने कहा, अली अमीन का अभी भी कोरोना मस्बत है। मैंने कहा था इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अगली समात पर लाजमी पेश होऊंगा। वकील अली अमीन ने कहा, मैं डॉक्टर तो नहीं, उन्हें कोरोना था तो पेश नहीं होना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर ने इलेक्शन कमीशन नोटिस का जवाब जमा करा लिया। कोरोना के बावजूद अली अमीन के क्लिप्स सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर को तो कोरोना था। आपको एक बार फिर बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन मुतहरिक हो गई। इलेक्शन कमीशन का फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान को नोटिस। ज़ियाउर रहमान को डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने 5 फरवरी को तलब कर लिया। ज़ियाउर रहमान को JUI उम्मीदवार के मुहिम चलाने पर नोटिस जारी हुआ था। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। बुखार में इस्तेमाल होने वाली दवा पैरासीटामोल की कीमत में इजाफा हो गया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मंजूरी भी दे दी। एक गोली की कीमत ₹2.67 हो जाएगी। दवा साज कंपनियों ने पैरासीटामोल की कीमत में ₹3.5 इजाफे का मुतालिबा किया था। कोरोना में मतलब बढ़ने पर पैरासीटामोल की दस्तयाबी कम होने लगी थी। शहरियों से इजाफी पैरासीटामोल ज़ख़ीरा करने से गुरेज करने की दरख्वास्त की गई थी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनी को इस हालत में दवाएं ज़ख़ीरा न करने की हदायत की गई थी। आपको बताएं कि बुखार में इस्तेमाल होने वाली दवा पैरासीटामोल की कीमत में इजाफा हो गया है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी है। एक गोली की कीमत में ₹2.67 इजाफा हो गया है। 2 दवा साज कंपनियों ने पैरासीटामोल की कीमत में ₹3.5 इजाफे का मुतालिबा किया था। कोरोना में मतलब बढ़ने पर पैरासीटामोल की दस्तयाबी कम होने लगी। शहरियों में इजाफे से पैरासीटामोल ज़ख़ीरा करने से गुरेज करने की भी हिदायत की गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल TV नासिर भट्ट से। जी नासिर भट्ट, बताइएगा। अब बिल्कुल देखिए जी, कोरोना में जो है बुखार की वजह से जो पैरासीटामोल है उसकी जो तलब है उसमें इजाफा हुआ था, जिसके बाद आज बाकायदा तौर पर कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। ड्रैब की जानिब से मंजूरी दे दी गई है, नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। एक गोली की जो कीमत है वो ₹2.67 हो जाएगी इजाफे के बाद, जबकि दवासाज कंपनियों ने पैरासीटामोल की कीमत में ₹3.5 तक इजाफे का मुतालबा किया था। कोरोना में मतलब जो है बढ़ने की वजह से पैरासीटामोल की जो दस्तयाबी है वो कम होने लगी थी, जिसके बाद शहरियों ने इजाफी जो पैरासीटामोल है ज़ख़ीरा करने से गुरेज करने के हवाले से भी दरख्वास्त दी थी। ड्रैब की जांच से ये कहा गया है कि मेडिकल स्टोर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनियों को इस हालत में दवाएं ज़ख़ीरा न करने की हिदायत भी दी गई है। जी नासिर भट्ट, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कुछ आलमी वबा की। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 48 अफराद जहाँ बहक हो गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजमूई हलाकतों की तादाद 29,420 तक पहुँच गई है। 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजीद 6,377 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 4,83,779, सिंध में 5,47,920 अफराद मुतासर हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1,99,000
1,99,195, इस्लामाबाद में 1,30,337 अफराद मुतासिर हुए, बलोचिस्तान में 34,634, गिलगित बल्तिस्तान में 10,837 अफराद मुतासिर हुए। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस की आलमी वबा से 39,894 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी, 24 घंटों में मजीद 48 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजमूई हलाकतों की तादाद 29,420 तक पहुंच गई है। 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजीद 6,377 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 4,83,779, सिंध में 5,47,920 अफराद मुतासिर हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में 1,99,195, इस्लामाबाद में 1,30,337 अफराद मुतासिर हुए। बलोचिस्तान में 34,634, गिलगित बल्तिस्तान में 10,837 अफराद मुतासिर हुए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी मियां आमिर जमील से। जी मियां आमिर जमील, बताइएगा। जी बिल्कुल जैनब, इस वक्त देखा जाए तो कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त जो महकमा सेहत के मुताबिक जो है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2031 जो है मरीज पंजाब भर में रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,076 मरीज जो रिपोर्ट हुए हैं कोरोना के पॉजिटिव, जबकि रावलपिंडी में 154 और रहीमिया खां में 131, मुल्तान में 118, फैसलाबाद में 105, सियालकोट में 57, गुजरांवाला में 56 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरीके से बहावलपुर में 39, शेखपुरा में 29, जेलम और हाफसाबाद में 23 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सरगोदा में 21, मियांवाली में कोरोना के 19 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कसूर में 17, बिहाड़ी में 16, गुजरात में 14, बखर में 12, जंग में 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरीके से जैनब हम बात करें जो सूरत हाल है, मुजफ्फरगढ़ से 9, उकाड़ा से 8, टोबा टेक्सी से जो है और खानेवाल से 7 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि ननकाना से 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो अगर हलाकतों की बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबा भर में कोरोना से जो हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं वो 18 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में 8 जो है कोरोना के मरीज जो है वो हलाक हुए, जबकि इसी तरीके से रावलपिंडी में 4, रहीमी हरखां और फैसलाबाद में 2 जो है 2, जबकि रहीमी हरखां और डेरा गाजी खां में 1 हलाकत रिपोर्ट हुई है महकमा सेहत के मुताबिक। दूसरी जानब जो सूरत हाल है इस वक्त गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह है वो 12.3% रिकॉर्ड की गई है लाहौर में, जबकि रावलपिंडी में 8.0% और जबकि फैसलाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 9.3, मुल्तान में 7.0 और जबकि गुजरांवाला में 4.5। लेकिन दूसरी जानब जो इस वक्त सबसे अहम बात है, कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जो है उसमें तेज़ी लाई जाए ताकि कोरोना के केसेस में कमी वाक़या हो सके। दूसरी जानब साथ साथ कोरोना SOPs पर अमल दरामद करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त ज़्यादातर जो है वो लोग जो है कोरोना SOPs पर अमल नहीं कर रहे, जिसके बायस जो है कोरोना के केसेस में मज़ीद इजाफा हो रहा है। तो हुकूमत की जानब से, महकमा सेहत की जानब से खुसूसी तौर पर यही बात सामने आ रही है कि कोरोना के केसेस में कमी के लिए कोरोना SOPs पर मुकम्मल तौर पर जो है अमल दरामद किया जाए ताकि कोरोना के केसेस में कमी वाक़या हो सके। जी मियां आमिर जमील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाजरीन को एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 48 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजमूई हलाकतों की तादाद 29,420 तक पहुँच गई है। 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 6,377 केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। पंजाब में 4,83,779, सिंध में 5,47,920 अफराद मुतासिर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 1,99,195, इस्लामाबाद में 1,30,337 अफराद मुतासिर हुए, जबकि बलोचिस्तान में 34,634, गिलगित बल्तिस्तान में 10,837 अफराद मुतासिर हुए और आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस की आलमी वबा से 39,894 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी इस्लामाबाद से नासिर भट्ट से। जी नासिर भट्ट, बताइएगा कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है कोरोना की? बिल्कुल, देखिए जो कोरोना की मौजूदा मस्बत केसेस की शरह है वो 8.65% तक पहुँच चुकी है। गुज़श्ता 3 रोज़ पहले जो शरह थी वो 10% तक पहुँच चुकी थी। इस हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर जो टेस्टिंग का अमल है वो किया जा रहा है। गुज़श्ता 1 रोज़ में मजमूई तौर पर
कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। तमाम तर तालीमी इदारों में भी NCOC की हिदायत पर जो टेस्टिंग है उसका अमल जारी है। कल से अब तक मजीद 25 स्कूल ऐसे हैं जिनको गुज़श्ता रोज़ कोरोना केसेस रिपोर्ट होने के बाद सील किया गया था। उनको दोबारा जो है वो ट्रेसिंग का अमल ख़त्म होने के बाद बाकायदा तौर पर खोलने की इजाज़त दे दी गई है। इसके साथ साथ मजीद स्कूल्स को, तालीमी इदारों को, वो तमाम तर कारोबारी मराकज़ जहाँ पर कोरोना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, 3 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने पर DHO इंतजामिया की जानिब से जो है वो उनको सील किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एक बार नाजरीन को दोबारा बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 48 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजमूई हलाकतों की तादाद 29,420 तक पहुँच गई है। 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजीद 6,377 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब में 4,83,779, सिंध में 5,47,920 अफराद मुतासर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 1,99,195, इस्लामाबाद में 1,30,337 अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि बलूचिस्तान में 34,634, गिलगित बल्तिस्तान में 10,837 अफराद मुतासर हुए और आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस की आलमी वबा से 39,894 अफराद मुतासर हो चुके हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। मजीद 24 घंटों में 48 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजमूई हलाकतों की तादाद 29,420 तक पहुँच गई है। 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 6,377 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब में 4,83,779, सिंध में 5,47,920 अफराद मुतासर हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1,99,195, इस्लामाबाद में कोरोना वायरस से 1,30,337 अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि बलूचिस्तान में 34,634 अफराद मुतासर हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस से 10,837 अफराद मुतासर हो चुके हैं और आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस की आलमी वबा से 39,894 अफराद मुतासर हो चुके हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार अभी तक जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 48 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजमूई हलाकतों की तादाद 29,420 तक पहुँच गई है। 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजीद 6,377 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 4,83,779, सिंध में 5,47,920 अफराद कोरोना वायरस की वजह से मुतासर हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1,99,195, इस्लामाबाद में 1,30,337 अफराद मुतासर हुए। बलूचिस्तान में 34,634, गिलगित बल्तिस्तान में 10,837 अफराद मुतासर हुए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे कैपिटल TV गुलाम मुस्तफ़ा से। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है रावलपिंडी में इस वक्त कोरोना वायरस से? जी ज़ैनब, बिल्कुल अगर देखा जाए तो मुल्क के दूसरे शहरों की तरह रावलपिंडी में भी कोरोना वायरस के वार जो है वो जारी हैं, जबकि 24 घंटों में 48 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 36,568 अफराद को सेहतयाबी के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। कोरोना वायरस के बाद हलाकतों की तादाद जो 1,240 तक जा पहुंची है। इसी तरह कोरोना वायरस के बाद 6 अफराद की हालत जो है वो तफशीशनाक बताई जाती है, जबकि कोरोना वायरस से 44 मरीजों की हालत खतरे से बाहर और 48 मरीजों को ऑक्सीजन पर मुंतकिल किया गया था। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में, 11 होली फैमिली अस्पताल में इसी तरह 7 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि फौजी फाउंडेशन अस्पताल की अगर बात करें तो फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल में 35 अफराद रावलपिंडी में ज़ेर इलाज हैं। इसी तरह 98 अफराद का हाल रावलपिंडी के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। 3,018 अफराद को घरों में क्वारंटीना की सहूलत फराहम की गई है, जबकि मैं आपको बताऊं गुज़श्ता 24 घंटों में जो इस वक्त कोटवा टाउन में कोरोना वायरस के 45 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रावल टाउन में 33, कैंट में 31, गुजर खान में 8 और मरी में 1 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुआ है। जबकि अगर हम तालीमी इदारों की बात करें तो रावलपिंडी के मजीद जो हैं 4 तालीमी इदारे जो हैं वो सील कर दिए गए हैं, जबकि तालीमी इदारों के रावलपिंडी में जो इस वक्त मजमूई तादाद जो है वो 94 हो चुकी है जो सील किए जा चुके हैं, जबकि तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला
طلبہ میں کورونا ٹیسٹ سیمپلنگ کے دوران مثبت آنے پر کیا تھا، جبکہ بند کیے جانے والے اسکولوں میں مختلف اسکولز ہیں راولپنڈی کے. اور اگر ہم زینب ایس او پیز کے حوالے سے بات کریں تو ایس او پیز کے حوالے سے ہمیں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر جو ایس او پیز پر عمل درآمد ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے بہرحال کہا جا رہا ہے کہ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، لیکن ایس او پیز کے اوپر کسی بھی قسم کی جنسی ہے وہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. جبکہ ملک بھر میں کورونا وائرس کی ہلاکت خیز لہر جاری ہے اور ہلاکتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ ایک روز کے دوران کورونا وائرس کے 6000 سے زائد نئے کیسز اور 48 اموات رپورٹ ہوئی ہیں. کورونا وائرس کے بعد 48 افراد جو ہیں وہ ملک بھر میں جاں بحق ہوئے ہیں. کورونا وائرس سے مجموعی تو اموات کی تعداد اگر بات کریں تو 29,420 ہو چکی ہے. ملک میں کورونا وائرس سے صحتیاب مریضوں کی تعداد جو ہے مجموعی طور پر 13,17,385 ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 6,377 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں. اسی طرح ملک میں کووڈ 19 کے مجموعی کیسز کی تعداد 14,48,663 تک جا پہنچی ہے. جی بہت شکریہ غلام مصطفیٰ، ناصر بٹ اور میاں عامر جمیل تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اب آپ کو بتائیں کہ عمران صاحب نے ہر پاکستانی بچے، بوڑھے، نوجوان، خواتین کو مقروض بنا دیا ہے. مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ ان کے مسلط ہونے کے بعد ہر پاکستانی پر واجب الادا میں 50% اضافہ ہوا ہے. پاکستان کی تاریخ میں لیے گئے کل قرض کا 70% عمران صاحب نے لیا ہے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ ان کی وجہ سے ہر پاکستانی 58,000 سے بڑھ کر 1,79,000 روپے کا مقروض ہو چکا ہے. 2 کروڑ 20 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیے گئے ہیں، ان میں سے 1 کروڑ 40 لاکھ بچے ہیں. مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ وزیر خزانہ نے بڑی خوشی سے $1 ارب مقروض ہونے کا اعلان کیا. عمران صاحب پر نظر رکھی جائے، IMF سے قرض لینے پر خودکشی ہی نہ کر لے. ترجمان مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ عمران صاحب نے قوم پر جو قرض چڑھایا وہ کون ادا کرے گا. قرض لینے کا عمران صاحب کا تاریخی ریکارڈ پاکستان کے لیے خطرناک ہے. پاکستان سب سے زیادہ مقروض، لیکن عمران خان کا بنی گالہ کا محل ریگولرائز ہو گیا ہے. پاکستان کی فی کس آمدن کم ہوگی. مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ 3 سال میں عمران صاحب کی آمدن 90% بڑھ گئی. 3 سال میں عمران صاحب کو تو سب کچھ نیا مل گیا. عوام کو قرض، بھوک، بے روزگاری اور مہنگائی کے سوا کیا ملا؟ عمران صاحب عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. خودکشی کرنے کا ہی سوچ لے، شاید کامیابی ہو جائے اور عوام کو سکون آ جائے. ترجمان مریم اورنگزیب کی گفتگو. آپ کو بتائیں کہ فاسٹ بالر محمد حسنین کا بالنگ ایکشن غیر قانونی قرار دے دیا گیا، درستگی تک معطل رہیں گے. حسنین کا بالنگ ایکشن ٹیسٹ 21 جنوری کو لاہور میں ہوا. PCB کے مطابق کرکٹ آسٹریلیا کے ماہرین نے حسنین کی بالنگ ایکشن کو غیر قانونی قرار دے دیا. کرکٹ آسٹریلیا سے تفصیلی رپورٹ آج موصول ہوئی ہے. آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ فاسٹ بالر محمد حسنین کا بالنگ ایکشن غیر قانونی قرار، درستگی تک معطل رہیں گے. حسنین کا بالنگ ایکشن ٹیسٹ 21 جنوری کو لاہور میں ہوا. PCB کے مطابق کرکٹ آسٹریلیا کے ماہرین نے حسنین کو بالنگ ایکشن کو غیر قانونی قرار دے دیا. کرکٹ آسٹریلیا سے تفصیلی رپورٹ آج موصول ہوئی ہے. نیوز